नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है आप सभी का। स्टडी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स 8 कर रहे हैं हम लोग आपके साथ। ये 8th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 3-4 जनवरी 2017, यानी कि हम लोग जुलाई से 6 महीने पहले। और इसमें जो एजेंडा आइटम था, इसमें कई इंडस्ट्री वाले आए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, सिविल एविएशन, रेलवेज एंड कॉमर्स। इन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। सब में इनफैक्ट जितने भी ये हैं 1 से लेकर 5 तक, इन्होंने कहा कि हमें सिंगल रजिस्ट्रेशन दे दो, जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। और फिर वो अपने अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं आपके साथ। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। In order to address these challenges, she suggested that GST, there should be one registration for a bank for its headquarters, and only IGST might be charged for all transactions. She observed that this would simplify compliance and would obviate the need to determine whether a customer coming to make a demand draft in the bank should pay C, S or I. She stated that at the end of the month, all the transactions could be segregated and invoices relating to B2B transaction would be uploaded, and information relating to B2C transactions would be furnished to facilitate transfer of tax to the destination state. She observed that this would make compliance easier and emphasized that real-time determination of place of supply would be very difficult due to large volume of transactions. मुझे एक बात बताइए, ऐसा हो पाया क्या बैंकिंग सिस्टम को सिंगल रजिस्ट्रेशन मिला? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। करीब करीब ये बैंक हर एक स्टेट में रजिस्टर्ड है जी। यस सर। अब इनको प्रॉब्लम क्या थी? प्लेस ऑफ सप्लाई में थी जी। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन हो रहा है आज के डेट में? बोला अगर B2B ट्रांजेक्शन है तो जो रजिस्टर्ड स्टेट है, जहां पर वो रजिस्टर्ड है, वो होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर B2C है तो जो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है वो होगा। यस और नो? तो इस सिस्टम पे पूरा चल रहा है। इसमें एक चीज मैंने और भी देखी है। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड क्या लोकल ब्रांच इशू करता है आपका? एटीएम कार्ड क्या लोकल ब्रांच इशू करता है? नहीं, ये तो हेडक्वार्टर ही यूज करते हैं, इशू करते हैं। इनके चार्जेस के ऊपर क्या लगाते हैं वो? आईजीएसटी। तो आई लगेगा या सी या एस लगेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सप्लायर के ऊपर और किसके ऊपर? रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर। ये प्लेस ऑफ सप्लाई दो चीज, या तो रिसिपिएंट का एड्रेस, रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड एड्रेस, अगर रजिस्टर्ड है तो, नहीं है तो उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। ठीक बात है। अब एड्रेस ऑन रिकॉर्ड तो बैंक लेता ही लेता है। अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड बैंक नहीं ले रहा है, जनरल B2C ट्रांजेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि इनवॉइस पे आप रिकॉर्ड कीजिए एड्रेस। यस और नो? अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू है। हेलो, यस सर। ये सब आपको याद आना चाहिए, तभी पॉसिबल। यस सर। The Honorable Minister from West Bengal observed that when in goods sector, multi-state operators were registered under VAT in every state, it would be desirable for multi-state operators in service sectors to be also registered in every state. He cautioned that any exception for one sector would lead to demand for the same exception from other sectors, which would be difficult to accept. The Honorable Minister from Tamil Nadu stated that for defining the place of supply, the banking sector was same as other sectors, and that the tax had to flow on the basis of the destination of the final consumer. He stated that even if IGST was charged, the final consumer would need to be identified to enable transfer of tax to the destination state. और फाइनल कंज्यूमर कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है? B2B या B2C से? B2C है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड से। He stated that if this could be done for IGST, it could also be done for C and S. He remarked that it was not correct to say that the complexity of an IT system would increase
due to the nature of the tax being paid. He expressed that keeping in view the overall philosophy of GST, registration should be taken in every state. और आज भी यही हो रहा है। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसको छोड़ देते हैं। Insurance sector, he pointed out that the volume of transaction in life insurance policies was very large and involved different kind of policies such as group policies, policies to person located in different states, etc., which were issued in different modes, including digital mode. He pointed out that there could be cases where insurance policy would be issued in one state, the policy holder would reside in another state, and claim against the policy would be made in the third state. तो इनिशियल स्टेज में था, लेकिन आज के डेट में आईजीएसटी का जो प्लेस ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजंस बना है उसे बड़ा क्लियर कट है। रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड, नहीं तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। सबका यही कर दिया। टेलीकॉम का भी वही कर दिया। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने एक बार डिस्कस कर चुका था आपके साथ। टेलीकॉम का भी वैसा ही उन्होंने किया है, प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स। वही सेंट्रलाइजेशन सारा कुछ है। पूलिंग ऑफ आईटीसी, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी वही कहानी है, सेम। सिविल एविएशन में भी वही कहानी है जो हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आपके साथ। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। रेलवेज में भी वही कहानी है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में वो पूरा डेटा उठा दे रहे हैं कि इतना करोड़ आ रहा है, उतना करोड़ आ रहा है, यानी कि गुड्स इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। कोई खास इसमें दिया हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग आते हैं यहां, ड्राफ्ट आईजीएसटी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे तो पढ़ के बहुत मजा आया इसको। आज मुझे एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब क्या है? आर्टिकल 1 में है, ये लिखता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज विल बी ट्रीटेड एज स्टेट। हेलो, ज्योग्राफिकल तो इंडिया का मैप निकाल लीजिए, तो ये केरला का अगर ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है तो दिस ज्योग्राफिकल बाउंड्री विल बी ट्रीटेड एज स्टेट। क्या इसका पानी 0 to 200 नॉटिकल माइल इज ए स्टेट? मैं फिर से बोल रहा हूं। यस सर। पानी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अप टू 12 नॉटिकल माइल एंड बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल एंड 200 नॉटिकल माइल। अब मैं जो बात पूछना चाह रहा हूं बताइए, 0 to 200 नॉटिकल माइल इज इट ट्रीटेड एज स्टेट? अच्छा, यूं दूसरा बताइए, 0 to 12 नॉटिकल माइल जो कोस्टल स्टेट्स है, इसका पानी क्या स्टेट है? खाली टेरिटरी करके बोलते हैं सर उसको, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया कहते हैं। हाँ। यहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी होगी फिशरी की या फिर शिप रिपेयरिंग की, तो इसका पैसा किसके पास जाता है? स्टेट के पास। स्टेट के पास जाता है, ठीक है। लेकिन क्या 0 to 12 नॉटिकल माइल को स्टेट मानते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन? कस्टम में देखना पड़ेगा सर वो। नहीं, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बताइए। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ लिखा हुआ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जी। तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दिस 0 to 12 नॉटिकल माइल इज नॉट ए स्टेट, करेक्ट है? ओके। अगर ये अगर स्टेट नहीं है तो ये क्या है? ये अगर स्टेट का हिस्सा नहीं है तो किस गवर्नमेंट का हिस्सा है? सेंट्रल हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनियन टेरिटरी। हाँ, लोग कहेंगे ना। अब आप याद कीजिए, एक कोड 97 है जिसमें अदर टेरिटरी लिखा हुआ है जी। ये कौन सी टेरिटरी? अदर टेरिटरी। ये 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक ये अदर टेरिटरी है। याद कीजिए वॉल्यूम 1 की लाइव क्लास, दिस इज अदर टेरिटरी। तो यहां पर अगर कोई रिफाइनरी है या फिर वो जो ऑयल रिग अगर बैठा हुआ, तो इसका पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल के पास। अदर टेरिटरी है तो सेंटर के पास जाएगा, ठीक बात है जी। अब मुझे एक बात बताइए, लेकिन जीएसटी में क्या किया इन्होंने? 0 से लेकर 12 नॉटिकल माइल का पैसा किसके पास जा रहा है? स्टेट के पास। स्टेट के पास है ना। नियरेस्ट कोस्ट, नियरेस्ट वाला एक कॉन्सेप्ट हमने किया था, आपको याद होगा तो। यस सर, यस। करेक्ट।
हाँ अब मुझे एक बात बताइए, क्या उन्होंने स्टेट का डेफिनेशन चेंज किया? Yes. स्टेट का डेफिनेशन चेंज करेंगे, 0 to 12 नॉटिकल माइल उस स्टेट के डेफिनेशन में लेके आएंगे तब तो जाएगा। हाँ बराबर है। लेकिन स्टेट का डेफिनेशन तो चेंज नहीं हुआ। नहीं नहीं, अगर स्टेट का डेफिनेशन में वो अप टू 12 नॉटिकल माइल ऐड कर देंगे तो किसका वॉल्यूशन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है। हम्म। तो उन्होंने क्या किया होगा? आईजीएसटी एक्ट निकलता है। इन्होंने सेक्शन 9 में लिखा कि अगर 0 to 12 नॉटिकल माइल में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो उस स्टेट का माना जाएगा जिससे वो एकदम नियरेस्ट है। सेक्शन 9। तो दे हैव चेंज द प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, नथिंग मोर देन दैट। दे हैव नॉट चेंज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 9। डेफिनेशन ऑफ स्टेट सेक्शन 9 निकालता हूं कि notwithstanding anything contained in this act, where the location of the supplier is in the territorial water, the location of such supplier, where the place of supply is in territorial water, the place of supply shall, for the purposes of this act, be deemed to be the coastal state or union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located. ठीक है? तो they have not changed the definition of state. अगर मैं definition of state देखूं IGST में तो क्या लिखा हुआ देखिए आप, लिखा भी है कि नहीं? यहां नहीं लिखा हुआ। सीजीएसटी एक्ट में। सीजीएसटी एक्ट, हाँ सीजीएसटी एक्ट में रहेगा। State includes a union territory with legislature. इसका मतलब क्या हुआ? हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेचर है। किस यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेचर है बताइए? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, स्टेट का। किस यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेचर है? दिल्ली का, जिसमें अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर, एंड पुडुचेरी का। तो दिल्ली एंड पुडुचेरी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दे आर यूनियन टेरिटरी, फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी लॉ, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर विल बी also treated as state. ठीक बात है? इस पूरे स्टेट के डेफिनेशन में टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है। करेक्ट है? अब आइए ये लोग डिस्कस क्या क्या कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Whether to define state for GST or to define an area for administration of GST. He pointed out that the definition of state proposed under agenda item 3A left out part of the coast from the jurisdiction of the coastal states which they administered otherwise, as for example, the responsibility for policing up to 12 nautical miles from the coastline. He pointed out that even if coastal waters were not part of the territory of the coastal states, the policing responsibility had been entrusted to such states. He suggested that similar approach could be followed for SGST, namely, not to include territorial waters as part of the definition of state, but treat it as a part of state for the administration of SGST. Karnataka ने कहा. He further stated that for the purpose of fishing, territorial waters along with coastline were treated as part of the state. The Honorable Minister from Kerala stated that VAT on ship bunkering, matlab parking, was an important source of revenue for a state and it could not be given up in the GST receipt. Income क्या क्या होती है coastline से? Bunkering to the ships and dredgers, supply to the ships including cruise ships and supply of used oils from the ship. He further pointed out that the coastal states had made considerable investment in development of ports, related logistics and other infrastructure such as roads, railways, power supply and environmental conservation measures. तो स्टेट कह रहा है कि हमने इतने सारे खर्चे किए, उसका
उस रिसोर्सेस को यूज करके लोग अगर सप्लाई करते या रिसीव करते उसका हिस्सा हम लोग को मिलना चाहिए। He stated that Article 1 of the Constitution, की चेयरपर्सन बोल रहे हैं, नहीं सॉरी, गुजरात। He stated that Article 1 of the Constitution read with Schedule 1 define the territories of a state but not its boundaries. He added that entry 56 in list 2 of the Schedule 7 of the Constitution refer to the states power to levy taxes on goods and passengers carried on inland waterways, but was silent about territorial waters, and that what was not mentioned in list 2 would automatically go to list 1 of Schedule 7 of the Constitution by virtue of residuary entry 97 of list 1. ये बात समझ में आई आपको, ये क्या कहना चाह रहा है? कितने लिस्ट हैं? एक मिनट होल्ड कीजिए। लिस्ट 1 किसके लिए है? सेंट्रल। ये स्टेट में एंट्री नंबर 56 में लिखा हुआ है कि स्टेट कैन लेवाई टैक्स इन इट्स बाउंड्री, ठीक बात है। इन टेरिटोरियल वाटर के बारे में नहीं लिखा हुआ, इनलैंड वाटरवे के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि जो नदी उदी जा रही है। और अगर यहां तो टेरिटोरियल वाटर्स में कौन टैक्स लगा सकता है? अगर लिस्ट 2 में कहीं नहीं लिखा हुआ तो सेंटर के लिस्ट 1 का एक रेसिड्यूरी एंट्री नंबर 97 है, जहां से सर्विस टैक्स भी आया था। यहां पर सेंटर हैज द पावर टू लेवाई टैक्स ऑन टेरिटोरियल एक्टिविटीज अंडरटेकन इन टेरिटोरियल वाटर्स। He further stated that there was a logic in the argument presented by the states that they should share the administration of GST in the territorial waters, as the center did not collect VAT in the territorial waters. But the conceptual difficulty was that a definition in law could not be contrary to what was provided in the Constitution. He pointed out that as the territorial water was not referred to in the first schedule of the Constitution, it appeared to be a union territory. He further pointed out that SCZ was physically located in the geographical territory of a state, but in the GST law, supply from it was deemed to be interstate supply, and this could also be potentially ultra vires of the Constitution provisions. Wherein it was held that sales to ship within the territorial waters was sale within the state, and it was not to be considered an export as the sale was for consumption abroad the ship. ये VAT में बड़ा इंटरेस्टिंग या CST में बड़ा इंटरेस्टिंग आया था। मान लीजिए यहां से यहां पर कोई शिप पार्क किया हुआ या बंकर्ड किया हुआ है, यहां से यहां सप्लाई हो रहा है, CST लगेगा या VAT लगेगा? CST। CST तो नहीं लगेगा, VAT लगेगा। CST कैसे लग जाएगा? CST तो इंटरस्टेट सप्लाई में होता, और ये जो 12 नॉटिकल माइल है इसको स्टेट का हिस्सा ही माना गया है, तो ये तो लोकल सप्लाई का हिस्सा है, तो ये VAT ही लगेगा। GST में मैं बता दूं, GST में भी आज सप्लायर कहां लोकेटेड है? यहां लोकेटेड है, उस सेम स्टेट में, मान लीजिए महाराष्ट्र में लोकेटेड है। शिप यहां पर पार्क है, ये शिप रिपेयरिंग की सर्विस यहां दे रहा है, बताइए I लगाएगा या C+S लगाएगा? C+S, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहता है? जो सेक्शन 9 है IGST का, वो क्या कह रहा है कि सप्लायर का लोकेशन क्या होगा? जो जहां मान लीजिए यही हमने यही बना दिया, रिसिपिएंट का लोकेशन अगर टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल है तो ये होगा जी। तो यहां से यहां तो C+S ही लगाएगा ना, कैसे लगा देगा? नहीं, बराबर। सप्लायर भी 12 नॉटिकल माइल के अंदर है और रिसिपिएंट भी 12 नॉटिकल माइल के अंदर ही हो, तो ये टेरिटोरियल वाटर टू टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल में अगर सप्लाई हो रहा है तब भी C+S लगेगा, बराबर, सेक्शन 9 जी। चलिए, we therefore want to state expressly in the Constitution that where
any maritime state joins Indian Union, the territorial waters of that maritime state will go to the central government. This kind of question shall never be subject to any kind of dispute adjudication. तो ये कह रहा constitution ही change करो खैर. He added that in 1956, Central Sales Tax Act 1956, the constitution was amended to incorporate definition in the Union Territory in Article 3, which provided that whatever territory was not a part of the state in Schedule 1 of the Constitution was deemed to be the Union Territory. यानी कि वो जो 0 to 200 nautical mile पूरा Union Territory है. The Honorable Minister from Karnataka stated that by an administrative arrangement, territorial waters could still remain a Union Territory and only a deeming fiction could be created to treat supplies in the territorial waters as intrastate. मुझे एक बात बताइए, अगर मैं सप्लायर यहां पर लोकेटेड है अप टू 12 नॉटिकल माइल, तो ये रजिस्ट्रेशन जो लेगा और इसमें लोकेशन क्या लिखेगा? मान लीजिए महाराष्ट्र लिखेगा या अदर टेरिटरी लिखेगा? महाराष्ट्र लिखना पड़ेगा। महाराष्ट्र लिखना पड़ेगा सर। क्या रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है टेरिटोरियल वाटर का? टेरिटोरियल वाटर का नहीं है। तो महाराष्ट्र कैसे लिखेगा? नहीं, फिर भी उसका पार्ट है ना सर, पार्ट है ना उसका। वो तो आईजीएसटी के लिए सिर्फ देखता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना वही कह रहा है, बिना इसके हो ही नहीं पाता। यस, एवरी पर्सन। वो आईजीएसटी के लिए था, सीजीएसटी के रजिस्ट्रेशन चैप्टर में लिखना पड़ता है उनको, तो लिखा है उन्होंने। ठीक ठीक। लेकिन सर अगर कोई ऐसा बॉर्डर आ जाता है जहाँ पे दोनों स्टेट का हो जाता है तो नियरेस्ट। और अगर फिर भी मामला सुलझा नहीं सकता तो फिर आईजीएसटी मामला तो सुलझाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। हाँ, मतलब स्टेट आपस में कर ले समझौता कि मैं जो दोनों जगह से 11 नॉटिकल माइल है कहां जाऊं, तो रेयरेस्ट और रेयर केस में मामला सुलझाना ही पड़ेगा। He pointed out that Article 269A5, 269A5, the Constitution gave Parliament to formulate by law principles for determining the place of supply, and the Parliament can use this power to deem certain supplies as intrastate. अब Constitution पढ़ना बहुत जरूरी है इस स्टेज पे। Constitution मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा लगता है, मास्टर लर्निंग में चलते हैं, सारा मामला Constitution में ही फंसा हुआ है। इसको मैंने डाउनलोड करके रख लेता हूँ, बार बार यूज आ रहा है। कौन सा आर्टिकल है? अरे किस आर्टिकल से आया है ये जीएसटी? 246 से 246A से आया है। एक मिनट, आर्टिकल 246 ये रहा। स्पेशल प्रोविजन, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर to make laws with respect to GST where the supply of goods or of services or both takes place in the course of intrastate trade or commerce.
फिर ये आर्टिकल 269 रेफर कर रहे हैं, ये रहा। Levy and collection of GST in the course of interstate trade or commerce. Levy and collection का मतलब, हेलो, अरे बता दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। कलेक्शन का मतलब क्या है? असेसमेंट। कौन करेगा असेसमेंट? कौन करेगा? सर्विसेज भी हो सकता है, सेल्फ भी होगा, और अगर आप सेल्फ Yes, ठीक से नहीं करेंगे तो कौन करेगा? डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट करेगा। अरे डिपार्टमेंट करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, सेंटर या स्टेट? इंटर सोच के बताइए। दोनों सेंटर करेगा, दोनों सेंटर करेगा। ना, सेंटर करेगा, सेंटर को, सेंटर करेगा। ये लॉ किसने बनाया है? लेवाई एंड कलेक्शन। यस कौन ये लॉ बना रहा है जीएसटी का? यस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहा है, तो स्टेट Hmm. कैसे कर लेगा? लॉ जिसका है वही करेगा Yes. ना। सही सही सही। तो जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहा है कि कलेक्टेड मतलब असेसमेंट, तो असेसमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट कैसे कर लेगा? और असेसमेंट करने के बाद, यानी कि आईजीएसटी कलेक्ट करने के बाद वो अपॉर्चमेंट कर देगा यूनियन एंड स्टेट्स में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ठीक बात है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज, सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका असेसमेंट कौन करेगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। हेलो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो आईजीएसटी लगेगा उसका असेसमेंट कौन करेगा? सेंटर करेगा। सेंटर करें, वो भी सेंटर करेगा, यस वो भी सेंटर करेगा। ठीक बात है ना। यस अब कहानी आई, जब ये सब कुछ सेंटर ही करेगा तो इसका मतलब स्टेट जुरिडिक्शन के पास एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आईजीएसटी का असेसमेंट करने का राइट ही नहीं है। आप देखिए स्टेट जुरिडिक्शन वाले आईजीएसटी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं? हेलो, जो उसके पास है नहीं। अब आप पढ़ते हैं, तो he pointed out that Article 269A5, Clause 5, Parliament may by law formulate the principles for determining the place of ठीक है। The Honorable Chairperson stated that as per the constitutional provision, there appeared no ambiguity that territorial waters up to 12 nautical miles were part of the Union Territory. Chairperson यानी कि late Arun Jaitley जी, he observed that the powers for fisheries in territorial waters lay with the states, and by convention, states started levying VAT on petroleum products sold in territorial waters by passing their own law. He said that the issue remained as to whether a state could levy VAT in a union territory, and added that the responsibility of coastal security was delegated to the states after a conference of the Director General of Police of states, in which they were asked to supplement the security in the territorial waters, though this task was basically entrusted to the Coast Guard. अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालें वो भी बाद में डिस्कस होगा। अब आता है डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। वो कह रहे थे कि भैया डेफिनेशन ऑफ जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है आईजीएसटी में क्या है, वो पढ़ता हूं। Taking goods from a place of India to outside India. हाँ, मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, करेक्ट है। इसका मतलब ये सिंपली अगर एक्सपोर्ट का डेफिनेशन देखें हम लोग, तो अगर मैं कोई गुड्स इंडिया के बाहर ले जा रहा हूं, भले वो सप्लाई नहीं हो तो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। यहां से गुड्स मूव किया, आउटसाइड इंडिया चला गया, नो सप्लाई, नीदर बिजनेस नॉर कंसिडरेशन, कुछ भी नहीं है। मेरा एक
मैं यहां हूं, मेरा भाई यहां रहता है, मैंने भेज दिया, एक्सपोर्ट हो गया या नहीं हो गया? दिमाग में हाँ ना तो आ ही रहा होगा। हो ही गया सर, माल बाहर चला गया। उसमें लिखा है ना विदाउट कंसिडरेशन भी, वो आएगा सर उसमें। बिजनेस ही नहीं है, कंसिडरेशन वो तो नहीं है। बात की बात है ना, बट माल तो बाहर गया ना। हाँ, एक्सपोर्ट तो हो गया, लेकिन इस पे जीएसटी नहीं रहेगा। तो ये वेस्ट बंगाल वाले कह रहे भैया यहां पर ये टेकिंग गुड्स की जगह लिखिए सप्लाइंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, तो उसकी जरूरत नहीं है लिखने की। इस एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? अगर लेवाई का कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो एक्सपोर्ट पे लगेगा, वरना नहीं लगेगा। इसको छोड़ते हैं यहाँ भी। द कमिश्नर ऑब्जर्व दैट, अच्छा एक बात बताइए, आईजीएसटी इक्वल टू सी प्लस एस आज के डेट में, यस और नो? यस सर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सी प्लस एस तो लग रहा है 12%, आई लगा देते हैं 16%, इज इट पॉसिबल? नो। यस, यस ओके। ये पॉसिबल है। देखिए, कमिश्नर ऑब्जर्व दैट सम टोटल ऑफ सी एंड एस रेट्स माइट वेरी if a band of SGST rates was operated by some state in future। यानी कि जीएसटी काउंसिल मान रहा है कि स्टेट्स अगर चाहे, ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, तो अपना रेट फिक्स कर सकती है। अगर किसी स्टेट ने, महाराष्ट्र ने कहा कि हम मोबाइल फोन पे 12 नहीं अब 14 लगाएंगे, बाकी सब स्टेट 12 ही लगा रहे हैं, तो आई का रेट डिफरेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। आने वाले समय में पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है कॉम्प्लेक्स होने की। The Honorable Minister from Tamil Nadu raised a question as to whether states had the authority to have a different rates of tax। अब देख लीजिए, the secretary stated that a band of rate could be permitted for a state only if the council agreed to it। तो आने वाला समय जीएसटी के अलग अलग रूप दिखाने वाला है। चलिए इसको छोड़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आवाज टूट रही है, फिर से कहिए। हेलो, जिनेश जी कह रहे थे, फिर से कहिए जिनेश जी, आवाज टूट गई। वो जीएसटी रेट्स का बैंड में चेंजेस हो सकते हैं इफ द काउंसिल एग्रीज। हाँ, इफ एग्रीज, करेक्ट। काउंसिल को एग्री करना मुश्किल है। हाँ, ऑब्वियसली मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जैसे केरला में सेस लगा, वैसा कुछ हो सकता होगा तो होगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपस में जो सी और एस का पैसा जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में डिस्कशन है, चल रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हम लोग आते हैं पावर टू मेक रूल्स। इसमें और ये डिस्कस करते हैं, ये भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। जो जीएसटी काउंसिल बना है वो किस आर्टिकल से बना है? 279A से बना है। 279A में लिखा हुआ है द जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट्स ऑन, और ये सारा कुछ लिखा हुआ कि किसको किस में रिकमेंडेड करेगा, जैसे टैक्स क्या रेट लगना चाहिए, कौन कौन सा रेट सब्ज्यूम होना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, कौन सा गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगा उसके बारे में लिखा हुआ है, मॉडल जीएसटी लॉ के बारे में लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर रिकमेंड करेगा, फ्लो रेट करेगा, या कोई स्पेशल रेट्स जहां पर नेचुरल कैलामिटी और डिजास्टर आ जाता है वो रिकमेंड करेगा, और कोई स्पेशल प्रोविजंस स्पेशल स्टेट्स के लिए, और कोई दूसरा मैटर जो जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर ले। ठीक बात है, इतना ही तो है।
मुझे एक बात बताइए, ये जो ए से लेकर एच तक या जी तक जितने भी रिकमेंडेशन है, क्या वो बाइंडिंग है? मान लीजिए रेट फिक्स किया गया बॉटल्ड वाटर पे 5%, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह रहा है हम तो एग्जाम करना चाह रहे हैं 0%, हम ये रेट मानेंगे ही नहीं। पॉसिबल है? Yes, sir. नहीं, Then, बाइंडिंग है। ये तो अभी uh, इसका मोहित मिनरल्स का केस आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज बाइंडिंग। मैंने आपको ये भी कहा था बाइंडिंग क्यों है, क्योंकि रेट आज डिसाइडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, सेक्शन 9 में, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। लेकिन ये जो मॉडल जीएसटी लॉ है, mm, दिस इज रिकमेंडेटरी नॉट बाइंडिंग, दिस इज mhm, रिकमेंडेटरी नॉट बाइंडिंग। सिर्फ लॉ बनाने का। अब देखिए कहानी समझिए इस चीज की। mm. इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए जीएसटी काउंसिल ने कहा Yes. कोई लॉ में कि हम नो सप्लाई में और एक आइटम ऐड करना चाह रहे हैं। एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन ला नहीं सकता, नो सप्लाई में कर देते हैं, वाटर बॉटल को यहीं डाल देते हैं। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। Possible. पॉसिबल है? यस। Yes. Yes. अगर ये पॉसिबल है, Mm. अगर ये मान लीजिए आप कह रहे हैं नॉट पॉसिबल, तो स्टेट क्या कहता है? वो सर हमसे बड़ा जीएसटी काउंसिल हो गया फिर तो। We are the elected representative of the people. Constitution has given us the right to make laws for the people of India. Yes. और जीएसटी काउंसिल कह रहा है ये लॉ में ये लिखिए, और हमें लिखना अगर पड़ रहा है तो जीएसटी काउंसिल इज बिगर देन अस। यस और नो? तो सेंटर और स्टेट के जॉइंट वोटिंग से जीएसटी काउंसिल से रिकमेंडेशन आ रहा है। Yes. Sir. तो देखिए अब स्टेट सब क्या क्या कह रहे हैं। He raised an interpretational issue as to whether the central government would have the power to override the recommendation of the council. The honorable chairperson stated that the council represented a pooled sovereignty and therefore a tradition needed to be built that recommendation of the council shall be binding on both the central and state government. तो बोला tradition built up, let us build a tradition. Though it is recommendatory, but let us build a tradition. तो आप याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जितने भी मीटिंग हुए हैं आज तक, शायद एक को छोड़ के, सारे में यूनानिमस डिसीजन लिए गए। ठीक बात है। लेकिन एक बात मैं और बताता हूं आपको, इस जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में अटेंड कौन करता था? सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेश ही अटेंड करते थे या हर एक स्टेट के लोग थे? कभी आपने चेक किया है? इसको मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग 9th डिस्कस कर रहे हैं। जो ओरिजिनल जीएसटी मीटिंग जो मैंने आपको मेल पे भी भेजा है, इस पे एकदम आखिरी में आइएगा। इसमें ये सब एजेंडा आइटम ये सब मैंने नहीं पढ़ रहे हम लोग। ये देखिए इतना कुछ होता है इसमें, लेकिन कौन कौन अटेंड किया है उसकी लिस्ट है पूरी। ये लिस्ट देख रहे हैं आप? लिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स हु हैव अटेंडेड, और ये है लिस्ट ऑफ स्टेट, लिस्ट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर हु हैव अटेंडेड 43rd जीएसटी। 43rd क्यों लिख रहा है? वो तो 9th में ऊपर नीचे कर दिया क्या इसने? चलिए कुछ और देखते हैं। 11th
हाँ 11th, ये देखिए कितने लोग हैं, 1 2, ये तो एक ही मानिए। फिर पुडुचेरी कितने लोग अटेंड किए, 20, मतलब 19 लोग अटेंड किए। क्या सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर? नहीं है। 31 स्टेट्स तो होने चाहिए थे, जी जी जी। या है ही नहीं। अब आप देख लीजिए कितने ही लोग हैं, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, दिस, नागालैंड, कर्नाटका, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु। इसमें कौन सा स्टेट कर्नाटका गायब है? महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र गायब है, हाँ है ना? हाँ। और दिखलाता हूँ, 33rd। अब ये लोग स्टेट्स ने अटेंड ही नहीं किया, कोरम हो गया था, अटेंड नहीं किया। अब यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा यूनानिमस डिसीजन हो गया, जिस स्टेट ने अटेंड नहीं किया उनके ऊपर भी बाइंडिंग हो गया, ठीक बात है ना? या रिकमेंडेटरी नेचर हो गया। हाँ ये देखिए यहाँ भी 23 लोगों ने अटेंड किया, यहाँ भी महाराष्ट्र है, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट 43rd देखते हैं। 43rd में तो कुछ हुआ ही नहीं था, मुझे याद आ रहा है। बाप रे बहुत बड़ा है, छोड़ दीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। खैर, तो a tradition need to be built that the recommendation of the council shall be binding on both the central and state governments. You observe that technically the parliament and state legislatures were sovereign entities, but each such body chose to depart from the recommendation of the council, then GST would not work. He stated that the word recommendation in the case of council should be read to mean that the central state shall not act otherwise than in accordance with the recommendation of the council. He observed that it needed to be recognized that de facto the council was the legislative body, while parliament and state legislature were de jure the legislative bodies. The actual legislative body, parliament and state legislature. He added that if the central or state government was not comfortable with any recommendation of the council, it would need to come back to the council and to get it changed. तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आया है, ये लोग काउंसिल मीटिंग में पहले ही डिस्कस कर चुके 2016 में कि भैया ये रिकमेंडेटरी है, बाइंडिंग नहीं है, अपना अपना काम कर सकता है, लेकिन इट वुड नॉट वर्क, जीएसटी वुड नॉट वर्क. The Honorable Minister from Kerala stated that the state legislature should have the freedom to enact a provision on its own without the approval of the council if it did not have any implication for other states. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये क्या कहना चाह रहे हैं केरला वाले कि बोले हमें ऐसा लेजिस्लेशन बनाने दो जिसको बाकी स्टेट्स को अफेक्ट ना पड़े, यानी कि मैं रेट ऑफ टैक्स में कुछ नहीं करूंगा, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में कुछ नहीं करूंगा, आरसीएम में कुछ नहीं करूंगा, लेवाई में कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मुझे एक्स्ट्रा बनाना है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्म बनाना है तो वो मुझे बनाने दिया जाए. He gave some examples in this regard, like certain facilities to be given to traders or measures to encourage voluntary registration. The Honorable Chairperson said that in the first cited example, the state legislature could act without the recommendation of the council, but not in the second cited example, as this measure could impact revenue of the other states. तो ये examples तो उन्होंने लिखा नहीं है पूरा. The Honorable Minister from Jammu and Kashmir observed that such an interpretation would disempower the legislative assemblies of the states. He added that council could not be placed above the state legislatures. The Honorable Minister from Kerala stated that the state legislatures should have the freedom to enact measures like introducing electronic billing, uploading invoices on real-time basis, or registration of tourists. The Secretary observed that facilitation measures which did not impact the law need not be brought to the council. The Honorable Minister from Kerala observed that if for every measure the state government had to come to the council, then the state legislature would become irrelevant in relation to indirect tax legislation. The Honorable Minister from Jammu and Kashmir added that
the powers of the state legislatures could not be subsumed even in the GST matter. The Honorable Mr. that in a desire to bind the center to the recommendation of the council, the country's entire legislative framework of indirect tax should not be bound by the recommendation of the council. He added that if the legislature supplemented the decision with certain procedures not impacting law without bringing it to the council, it could be acceptable. In the legal terminology, for the fields occupied by Article 279A, the state legislatures and parliaments were bound by the recommendation of the council. अब ये नया क्या लिख दिया है मैंने? The Honorable Minister from Assam stated that the center had developed a practice of accepting the recommendation of the Finance Commission, and a similar practice needed to be developed in respect of the recommendation of the council. Assam stated that it was only a civility in language, but otherwise it was to be treated as binding. इसमें किसी को कुछ कहना है? क्रॉस एम्पावरमेंट यानी कि जुरिडिक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, आईजीएसटी का पावर क्या स्टेट को दिया जा सकता है? सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं ना वही सर, क्रॉस एम्पावरमेंट में तो। हाँ हाँ, आईजीएसटी का पावर क्या स्टेट जुरिडिक्शन को दिया जा सकता है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर ले स्टेट वाले। हाँ, दे सकते आई नहीं हैं। लगेगा, C+S लगेगा, ये पावर दिया जा सकता है। यस यस यस। अभी तो किया आर्टिकल 269A में। लेवाई एंड कलेक्शन किसके पास है? अच्छा, सेंट्रल के पास। तो कैसे दिया जाएगा? Yes. Yes. पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, है ना? बाद में उन्होंने रास्ता निकाला है, मैं भी दिखलाता हूं आपको। आर्टिकल 258 यूज किया शायद, लेकिन आज भी आप देखिए कोई भी स्टेट जुरिडिक्शन करता है आईजीएसटी का असेसमेंट, अवॉइड ही कर रहे हैं शायद। नहीं, The Honorable Minister from Karnataka stated that the word assign in Article 269, अब ये देख लेते हैं आर्टिकल 269 क्या है, इसमें अगर होगा तो, इसमें नहीं होगा। सर मेरे पास अगर ASMT 10 आता है तो स्टेट, मेरा ट्रांजैक्शन दोनों का है, स्टेट का भी और इंटर स्टेट का भी है। तो ट्रांजैक्शन तो स्टेट वाले मतलब वही उसका ही है, ऑडिट का असेसमेंट कंप्लीट करेंगे, आईजीएसटी वाला देखेंगे नहीं ऐसा? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, देखिए क्या क्या इश्यू हो सकता है असेसमेंट में ASMT 10 में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का इश्यू हो सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर जैसे ही वो चेंज करने की कोशिश करेगा, जो स्टेट अफेक्टेड है, मान लीजिए पहले आप गुजरात में थे और आपने प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र दिखाया है जी। अब गुजरात का और आपका जुरिडिक्शन स्टेट में है ना, गुजरात के किसी स्टेट जुरिडिक्शन में, तो कहेगा नहीं महाराष्ट्र नहीं है, तो दिल्ली होगा, तमिलनाडु होगा, तो महाराष्ट्र वाला अफेक्टेड होगा। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र वालों कैसे कर दिया, गुजरात वालों को बोलेगा या नहीं बोलेगा? तो कहने का मतलब ये कि एक तो स्टेट के पास जुरिडिक्शन होना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस इसको दे दिया गया है और वो प्लेस ऑफ सप्लाई को चेंज करने की कोशिश करेगा तो दिक्कत है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब आप देखिए रेट ऑफ टैक्स गलत लगाया हुआ है, वैल्यूएशन गलत है, प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज नहीं कर रहा, लेकिन रेट ऑफ टैक्स और वैल्यूएशन तो चेक कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता। वो तो महाराष्ट्र में ही जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ ठीक है। दूसरी एक बात, स्टेट का अगर जुरिडिक्शन है तो ये आईजीएसटी आपने लगाया है और वो प्लेस ऑफ सप्लाई को इंटर की जगह इंट्रा करने की कोशिश करेगा तो दिक्कत है। महाराष्ट्र में बोलेगा यार मेरे पास पैसा आ रहा था, तुम अपने पास रख रहे हो। सही। ठीक बात है। दूसरा, रेट्स ऑफ टैक्स और वैल्यूएशन अगर चेक करता है, मान लो रेट्स ऑफ टैक्स 12% की जगह 5% करता है, तो महाराष्ट्र वाला दिक्कत है। या वैल्यूएशन को कम करने की कोशिश करता है तो भी दिक्कत है। यस और नो? तो यहां जहां प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर है, आईजीएसटी आ गया, तब तो दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट। दो स्टेट्स में स्टेट का जुरिडिक्शन कैसे आ सकता है? तो ये कुछ देखिए डिस्कस कर रहा है ये। The Honorable Minister from Karnataka stated that the word assign in Article 269
of the Constitution refer to the proceeds of taxes, and in Article 269A of the Constitution, this was replaced by the apportion, as the entire amount of tax was not being assigned to one state, but was rather apportioned between the center and destination state. मैं आपको दिखलाता हूँ पूरा wording फिर से. आर्टिकल 269 में क्या लिखा हुआ है कि लेवाई एंड कलेक्शन है ना, लेवाई एंड कलेक्शन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अपोर्शन होगा, असाइन नहीं लिख रहा है वर्ड, क्या लिख रहा है, अपोर्शन बिटवीन यूनियन स्टेट्स इन द मैनर. The Honorable Minister from Karnataka stated that the powers of assessment of tax, etc., would come from the word collected in Article 269A of the Constitution. The Honorable Chairperson stated that the power to levy, collect, and apportion IGST belong to the center. Again, Chairperson. The Honorable Minister from Karnataka stated that single interface would not work without cross empowerment of IGST. अब कर्नाटका वाले कह रहे भाई IGST का भी पावर हमें ही चाहिए, स्टेट वाले. The chairman stated that originally GST was conceived as a dual administration. तो जब शुरुआत में GST वो लेके आ रहे थे तो बोला एक एसएससी के दो जुरिडिक्शन होंगे, सेंटर वाला भी आपका असेसमेंट कर सकता है और स्टेट वाला भी असेसमेंट कर सकता है. ये सोच के जीएसटी बनाया गया. जब ये सोच के जीएसटी बनाया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उन्होंने इसीलिए लेवाई एंड कलेक्शन लिख दिया आईजीएसटी के केस में. अब सिंगल इंटरफेस के बारे में बात हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन आड़े आ रहा है. Was conceived as a dual administration and later on it was realized that single interface was desirable. He observed that having a single interface for C&S was much less challenging and that for IGST there was a constitutional challenge due to wording of Article 269A of the Constitution. He informed that the object and the purpose of the 6th Amendment of the Constitution in 56 was to address the problem of collection of sales tax, and the wording was drafted in that context, but there was no such intent when Article 269A of the Constitution was drafted, and it was understood that tax would be levied and collected by the central government. He observed that given the fact that registration, return, etc. were common and tax dispute was likely to be minimum, the intervention of tax administration would be in a very limited cases. Chairperson observed that the issues that emerged from discussion were GST was a single tax, so it was desirable to have a single interface. States were of the view that small shopkeepers and traders should remain in the domain of the states. IGST was to be levied, collected and apportioned by the Union of India, and going by the language of the Constitution, single interface would not be possible. Conventionally, CBEC had been administrating service tax. How to optimally use the machinery of the central and state governments. यहाँ problem आ गई, complete हो गई. एट कंप्लीट हो गया.